Yesterday we were discussing master theorem for solving divide and conquer recurrences. Let us see one more example that will demonstrate this theorem to you. I had asked you to find out the recurrence relation for finding the maximum and minimum of a given sequence. Hope you tried it. Okay. So if you have find it out, then cross check it whether the recurrence relation I have mentioned here is same as you found or not. See how we can find the recurrence relation of the algorithm that finds minimum and maximum of given two sequence. How to find? We have given a sequence A1 to AN. If there is only one element in the sequence, then A1 is minimum and maximum element. Only one element, so it is minimum as well as it is maximum element. If n is greater than 1, if number of elements in sequence are greater than 1, then we want to implement this algorithm as a divide and conquer algorithm, not the bubble sort kind of algorithm. If you will use bubble sort algorithm, then that may result into linear recurrence. Have you find out? I told you yesterday using bubble sort, maximum and minimum finding. Have you tried? It may possible that you do not understand what is asked. So therefore, no one has posted the answer in the group, as well as you are not answering here too. So actually, what we want to find out the recurrence relation for this problem, finding minimum and maximum given sequence using divide and conquer way, divide and conquer method, not the linear method. So how we can find it out? If more than one elements are there in the sequence, then we want to split it. So while splitting, there is possibility that in the both parts, half part left and right half part, same number of elements are there if n is even. And if n is odd, one element more than other in the sequence. If n is even, both lists will contain same number of elements. And if n is odd, one list will contain one element more than the other sequence. So how to find out recurrence relation for this problem? So this is like this. Let f of n be total number of comparisons needed for sequence with n elements. Let f of n be total number of comparisons needed for sequence with n elements. Problem of size n is divided into two problems of size n by 2. In the half, we want to divide it. So two problems of size n by 2. When n is even, the problem is divided into two halves and two comparisons are needed. जब तक दोनों हाफ्स में एक एक एलिमेंट नहीं रह जाता, तब तक ये जो लिस्ट है रिकर्सिव एल्गोरिथम इसको डिवाइड करता रहेगा, और जब एक ही एलिमेंट लिस्ट में बचेगा तब दो कंपैरिजंस होंगी. एक कंपैरिजन मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए और दूसरी कंपैरिजन मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए.
और फिर बाद में कॉन्कर शुरू होगा। तो यहाँ पर ये जो रिकरेंस रिलेशन है फॉर फाइंडिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम विल बी शोन लाइक दिस, 2 times f of n by 2 plus 2. We know this is same as merge sort, and in the merge sort we compare n comparisons are needed plus 1 extra needed, sorry, minus 1 subtracted from that. Here we need 2 comparisons when n is even. So when we have this function or recurrence relation, we have f of n equals to 2 f of n by 2 plus 2 for n even. What will be the solution of this recurrence relation? So where to find out? कहाँ पर देखिए ये कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हमने देखा है कि आप इसे 2 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। एक, आप अकराबाजी फॉर्मूला यूज कर सकते हो और दूसरा आप मास्टर थ्योरम यूज कर सकते हो। तो अकराबाजी फॉर्मूला यूज करने के लिए आप इसे A1 और B1 टाइप लेकर P निकालकर उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो इंटीग्रेशन और डेरिवेशन सॉल्व करके, और दूसरा डायरेक्टली आप ये वैल्यू देख सकते हो। तो हमने जो एल्गोरिथम देखा था उसमें हमने देखा था कि ये हमारी कांस्टेंट टर्म है और ये हमारी फंक्शनल टर्म है। तो ये जो वैल्यू A है इससे यूज कर हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी या उसका सॉल्यूशन या उसका नंबर ऑफ कंपैरिजंस निकालते हैं। तो यहाँ पर A की वैल्यू है 2 जो कि 1 से ग्रेटर है। A की वैल्यू 2 है तो वो 1 से ग्रेटर है, तो इसलिए ऑर्डर ये आ जाएगा। तो जो ये देख लो, ऑर्डर ऑफ n रेज़ टू log a टू द बेस b, तो यही है हमारी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ये हम इसे लिखेंगे f of n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ n रेज़ टू log a टू द बेस b। ये थीटा नहीं है, ये ऑर्डर होना चाहिए। It is order of n raised to log a to the base b, क्योंकि a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो ये हो गई हमारे मिनिमम और मैक्सिमम फ्रॉम अ गिवन सीक्वेंस फाइंड आउट करने के एल्गोरिथम की सॉल्यूशन और रिकरेंस का सॉल्यूशन। नंबर ऑफ कंपैरिजंस आर नीडेड दैट आर n raised to log a to the base b। तो यहाँ पर अब आपका जो a है वो भी 2 है और जो b है वो भी 2 है, तो ये आ जाएगा आपका f of n ऑर्डर ऑफ n raised to log 2 to the base 2। फर्दर हम इसे log 2 हमें पता है to the base 2, तो क्या है वो log 2 मर्ज सॉर्ट में ही देखा था हमने। क्या है log 2? 1 1 श्योर 1? ओके 1 है कि 2 है? 2 है मैम, 2 है मैम, log 2 2 is, फिर से कंफ्यूज कर रहे हो, नोटबुक में देख लो, log 2 is 1 है, log 2 is 1, so therefore here that will be order of n. So n number of comparisons are needed to find minimum and maximum of a given sequence.
तो इतना डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक भी आ गया आपका आंसर फिर भी चलता है। ओके, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है अगर ये एल्गोरिदम आपके ध्यान में है तो, और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। ए देखो जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है फंक्शन का, अगर ये टर्म कांस्टेंट हुई तो, ये जो सी है ये कांस्टेंट हुआ तो ए की वैल्यू देखो और उसके हिसाब से यहाँ पर आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी या सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब आगे हमें ये वाला देखना है, इसका एग्जांपल देखना है। फर्दरमोर व्हेन n इज इक्वल्स टू b रेज़ टू k, ये जो n है, ये n, ये अगर इस टाइप का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल काइंड ऑफ फंक्शन, और we call it as increasing function, and if a is not equals to 1 and k is positive integer, then the solution is this: f of n equals to c1 n raised to log a to the base b plus c2, where c1 equals to f of 1 means first initial functional term plus c upon a minus 1 and c2 equals to minus c upon a minus 1. अगर n इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ तो ये सॉल्यूशन होता है। Otherwise, if n is normal, as we have seen in previous examples, a की वैल्यू से ही हम उसका सॉल्यूशन निकालें। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए, that will be more clear to you. Write down this example with me. Let f of n is 5 f of n by 2 plus 3 and f of 1 is equals to 7. Find f of 2 raised to k, where k is a positive integer. एक तो ये ढूंढना है और दूसरा also estimate f of n if f is an increasing function. So we have given this divide and conquer recurrence, and f of 1 is increasing function, f of 1 is given 7. We want to find out f of 2 raised to k. That means this is n equals to 1 and this is n equals to 2 raised to k. जब n की वैल्यू 2 raised to k होगी तो क्या आएगा, ये हमें निकालना है। अब तक जो भी एग्जांपल्स हमने देखे हैं उसमें n कोई तो भी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू रहती थी, अब यहाँ पर n की वैल्यू 2 raised to k दी है, तो इसके लिए ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, पावर वाला फंक्शन है, 2 की पावर वाला फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसकी ऑर्डर कैसे निकालें और इसको हम कैसे एस्टिमेट करें, let us try to see it. So how to solve this? First, we will write values of the coefficients. So first, value of A, value of B, and value of C, and value of N, what we want to see. So we see that
if n is equals to 2 raised to k, इसका हमें निकालना। तो ये जो रिकरेंस रिलेशन ऊपर दिया है एग्जाम्पल में, यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी? बोलो a की वैल्यू क्या आएगी? 5 5 5। b की वैल्यू क्या आएगी? 1/2 नॉट n by 2, n नहीं 1/2 करते इसको, 1/2 लेट अस कंसीडर इट 2। अब यहाँ पर अकरावाजी फॉर्मूला में हमने इसे 1/2 कंसीडर किया था, क्योंकि वो एक्चुअली कैलकुलेशंस में यूज होता है p की वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन अब आगे से ये जो डिवाइड एंड कॉन्कर का जनरल फॉर्मूला है वो n/b था, आपको याद होगा n/b। तो n/b मतलब b की वैल्यू जो डिनोमिनेटर में आती है वही रहेगी, इसलिए यहाँ पर b की वैल्यू होगी 2 और c की वैल्यू 3। ये हमारे कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हैं। तो जब n is equals to 2 raised to k, then here n is equals to 2 raised to k, so we have to choose this equation as a solution. We will not go for this, we must have to select this where c1 is calculated using this formula and c2 is calculated using this formula. So therefore, if n is equals to 2 raised to k, then f of n is equals to c1 into n raised to log a to the base b plus c2, and where c1 is calculated as this and c2 is calculated using this formula. Let us write down it. c1 equals to f1 plus c upon a minus 1. c1 equals to f1 plus, बोलो क्या है ये? c upon a minus 1 and c2 क्या है? माइनस C upon A minus 1. upon a minus 1। ये जो है ये आ गया आपका बाय थ्योरम। ओके, तो ये सॉल्यूशन है। यहाँ पर हमें c1 की वैल्यू निकालनी है, c2 की वैल्यू निकालनी है, और ये जो n रेज़ टू लॉग a है इसकी भी वैल्यू हमें एस्टिमेट करनी है, तभी हम f of 1 यूज करके f of 2 रेज़ टू k निकाल सकते हैं। तो पहली तो चीज हमें निकालनी है f of n, जो आपका 2 रेज़ टू k है। First thing we will start with f of n and finally ये जो भी आने वाला है ये आना चाहिए f of 2 raised to k, और दूसरा हमें एस्टिमेट करना है f of n को, जनरलाइज करना है। जो यहाँ पर दिया है ये f of n, इसको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो पहले we have to find out f of n। तो यहाँ पर एक्चुअली f of 2 raised to k के लिए सॉल्व करने के लिए हमें ये जो हमारा फंक्शन है c1 n raised to log a to the base b plus c2, इसे लिखना है c1 into n raised to log a to the base b
plus C2. This is given. Now, if you look at this, we want to simplify this term. N raised to log A to the base B. ये टर्म हमें सिंप्लीफाई करनी है. तो इसके लिए अगर हमारा n जो दिया हुआ है, हमारे पास n है. If n equals to 2 raised to k दिया है ना, यहाँ पर ये 2 raised to k दिया है, और ये जो 2 है नॉर्मली ये b होता है. b की वैल्यू 2 है, isn't it? तो ये 2 raised to k मतलब if n is equals to b raised to k. 2 की जगह पर मैंने क्या लिखा? raised to k. अगर n is equals to b raised to k है तो अब मर्ज सॉर्ट में हमने देखा था कि कैसे हमने वो स्टेप्स निकाले थे, याद है आपको? लॉग वाले. फॉर्मूला था, देखो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखती हूँ. अगर x है और हमने log x लिया टू द बेस b, तो ये अगर आता है y, x की जो वैल्यू है वही वैल्यू अगर हमने उसकी log टू द बेस b निकाला और ये अगर y आती है तो it is equivalent to x is equals to b raised to y. ये फॉर्मूला हमने देखा था और इसी फॉर्मूला से आपने ये निकाला था 2 raised to 1. यहाँ पर 2 हमारा बेस है और ये जो 1 है ये हमारा y है. तो ये आता है x की वैल्यू जो आती है, मतलब ये जो 2 है, 2 इसे हम x बोलते हैं. तो जब हम इसका log लेते हैं, ये log of x मतलब log of 2, इसकी वैल्यू आती है 1. याद है ना आपको? ये फॉर्मूला है हमारा x is equals to b raised to y. तो अगर मैंने log of x लिया टू द बेस b तो इसकी वैल्यू आती है y, isn't it? ये x is equals to b raised to y है. अगर मैंने इसकी वैल्यू आती है y. तो यहाँ पर ये जो x इक्वल्स टू b raised to k है, ये हमारा x is equals to b raised to y की तरह ही है. x is equals to b raised to y की तरह ही है. तो मैंने यहाँ पर log of किसका लिखना चाहिए? log of n to the base b equals to क्या होगा? K. K. Good. So we know that we have k is equals to log n to the base b. We can write it here. We have, or we will solve that thing here, and then we have k equals to log n to the base b.
ओके, ये है हमारे पास। तो अगर मैंने ये लिखा n रेज टू log a टू द बेस b, ऐसे लिखा, तो इस स्टेटमेंट को हम यूजिंग दिस क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये आ गया आपका k की वैल्यू है log n टू द बेस b, और अब n रेज टू log a टू द बेस b, ऐसा है। मतलब ये आ गया आपका बेस और ये आ गया आपका k, ये b और ये k। ओके, तो फिर यहाँ पर अगर मैंने ये यहाँ पर लिखा log a टू द बेस b, मतलब ये जो k है वो यहाँ पर लिखा, तो मुझे किसका log लेना पड़ेगा यहाँ पर? क्या मैं यहाँ पर ये ऐसा लिख सकती हूँ n इक्वल्स टू log a टू द बेस b? यहाँ पर देख लो, x इज इक्वल्स टू log x टू द बेस b इक्वल्स टू y आता है। तो ये जो x है इसे हम b रेस टू y लिख सकते हैं। तो जब ये b है और ये y है, ओके, ये b है ये y है, तो ये आ गया y इधर और ये आ गया आपका b इधर, और उसी को हम यहाँ पर x और x ऐसे बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर n इज इक्वल टू log a टू द बेस b लिख सकती हूँ। एंड वी नो दैट अगर ये जो बेस b है, ये जो n मतलब b है, तो इसे यूज कर हम n इक्वल्स टू log a टू द बेस b है, इसे यूज करके हम इसको a रेस टू log n टू द बेस b लिख सकते हैं। इसका मतलब इसे हम a रेस टू k लिख सकते हैं। k की वैल्यू है log n टू द बेस b। ये जो एक्सप्रेशन था n इज इक्वल टू log a टू द बेस b, अगर हमने ये देखा, ये अगर y है, ये अगर y है, तो यहाँ पर ये log ऑफ x, मतलब यहाँ किस जो साइड आएगी, x आएगी। x इज इक्वल टू n रेस टू k और b रेस टू k, x इज इक्वल टू b रेस टू k है। तो इसलिए log ऑफ x लिया यहाँ पर मैंने, तो ये आ जाएगा आपका k, और फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका a रेस टू log n अपॉन b, दैट इज इक्वल टू a रेस टू k। मतलब ये जो n है यहाँ पर n रेस टू log a टू द बेस b, इसे हम a रेस टू k लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ पर निकाला है। ये है a रेस टू k इंटू c1। तो इंटू c1 मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखती हूँ और प्लस c2। ये जो एक्सप्रेशन था उसे सॉल्व करके हमने उसे a रेस टू k से रिप्लेस कर दिया। अब a रेस टू k, a मतलब a की वैल्यू है हमारी 5, तो वो हम यहाँ पर दे देंगे 5। k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब हमें c1 और c2 की वैल्यू निकालनी, तो वो c1 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे और c2 की वैल्यू
यहाँ पर लिखेंगे। तो C1 का फॉर्मूला है, लेट मी राइट C1 हियर एंड C2 हियर। C1 का फॉर्मूला बोलता है f of 1 plus C upon a minus 1. Is this correct? Yes, correct. So f1 कितना है? f1 दिया है हमें, it is 7. f1 is 7 plus c दिया है, it is 3. So 7 plus 3 upon a is 5 minus 1. So 5 minus 1 means it is 4. So that will become 7 plus 3 upon 4. Okay. So solve this and tell me what is value of C1. Thirty-one by 4. What is 31 by 4? So this is C1. So we will write it here, 31 by 4. Now C2. C2 is minus C upon A minus 1. So C is 3 minus 3 upon 5 minus 1 means 4. Now here C2 is minus 3 upon 4. So we will put that value here, that is minus 3 upon 4. Okay. So this is f of 2 raised to k. We have find out the answer to the first question. Find f of 2 raised to k where k is positive integers. So f of 2 raised to k is 5 raised to k into 31 upon 4 minus 3 upon 4. This is f of 2 raised to k, where k is positive integer. अब यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर कोई भी फंक्शनल टर्म या वेरिएबल नहीं है, सिर्फ k है. जब k की कोई वैल्यू दी जाएगी तो हम उसे यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं और वो जो वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास f of 1 दिया है, आप उसे चेक कर सकते हो कि f of 1 इस फॉर्मूले से राइट है, 7 आता है कि नहीं. f of 1 मतलब ये 2 raised to 0 आ जाएगा, तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी. k की वैल्यू अगर हमने 0 ली तो क्या होता है, ये हमें यहाँ से चेक करना पड़ेगा और तब हम फाइंड आउट करेंगे. तो वैसे ही अगर मुझे f of 2 निकालना है, f of 2 निकालना है, सपोज, let me add one more slide here, one more slide. What will be f of 2? For f of 2, k की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी? ये जो f of फंक्शन है ये है हमारा 2 raised to k टाइप फंक्शन. तो f of 2 कब आएगा? जब हम ये 2 raised to 1 करेंगे. मतलब अगर k की वैल्यू मैंने 1 ली तो f of 2 आ सकता है. तो ये आ गया आपका f of 2. तो जो फॉर्मूला है हमारा वो है 5 raised to k, मतलब 5 raised to 1 into 31 upon 4 minus 3 upon 4. ये हो जाएगा आपका f of 2. निकालो इसको. 5 raised to 1 is 5, so it is 5 and 5 3 15, so 155 upon 4 minus 3 upon 4, and it is 152 upon 4. Now we can simplify it again.
it is 2, and here it is 2 sevens are 14 and 2 6 are 76. Now it is 2 ones are 2, 2 twos are 2 threes are 6 and 38. So f of 2 is 38. F of 1 was 7, if you remember. F of 1 was 7, f of 2 is 38. Like this, you can find out any value of n, the function for any value of n. Okay? So, in this way, we have find out f of 2 raised to k. अभी solution निकालना बाकी है, जो second है. Also estimate f of n if f is an increasing function. मतलब हमें estimate करना है. Estimate करना है मतलब इसका solution निकालना है. Function तो हमने निकाल लिया, recurrence भी दिया है और ये estimate भी कर लिया. अभी इसका solution निकालना है. तो solution निकालने के लिए पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो n है, जो f of n है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ a. यहाँ से हमने निकाल लिया वो फंक्शन. तो यहाँ पर अगर आपने देखा तो ये आ गया आपका फंक्शन इस टाइप का, जहां पर ये फंक्शन है और ये कांस्टेंट है. ओके, तो अब जो a की वैल्यू है, मतलब ये जो 5 है रिकरेंस में, इसको देखकर आप इन दोनों में से चूज कर सकते हो, वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी. तो a is 5 is greater than 1, so therefore it will choose this one. So n raised to log a to the base b, ये जो आएगी f of n, मतलब ऑर्डर ऑफ n raised to log a to the base b, ये आ जाएगी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी. अब अगर आगे सिंप्लीफाई करना है तो ऑर्डर ऑफ n raised to log 5 to the base b. b कितना है? 2 है. तो जब बेस 2 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं होती है. तो हम इसे, ये जो f of n है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n raised to log 5 लिख सकते हैं. So this is the way we find out the solution of any divide and conquer recurrence relation. Hope you understand all these things. तो divide and conquer recurrence relation में हमने क्या देखा? Divide and conquer recurrence relation is of this form. And you can solve that using Akrawazi formula or the master theorem. In master theorem, you find out value of a, which is constant of the functional coefficient of the functional term, and according to that you find out. So for this we have seen one of the example of binary search algorithm. Here we have first written the recursive relation of binary search, and then we find out its complexity, and then we have seen one more example, find the recurrence relation of the algorithm that finds minimum and maximum of a given sequence. We have seen this. और फिर हमने एक और एग्जांपल लेके उसको थोड़ा इंक्रीजिंग फंक्शन के फॉर्म में देखा. And here we have finished how we can solve divide and conquer recurrence relation. तो यहाँ पर हमारा सॉल्विंग रिकरेंसेस का टॉपिक खत्म होता है. हमने लीनियर रिकरेंसेस कैसे सॉल्व करना है वो देखा, डिवाइड एंड कॉन्कर रिकरेंसेस कैसे सॉल्व करना है वो भी देखा. लेकिन फिर भी मुझे एक ऐसा लगता है कि थोड़े एग्जाम्पल्स लेने की जरूरत है. कौन से सॉल्व करना तो अब आपको आ जाएगा,
कोई भी रिकरेंस रिलेशन अगर दिया डायरेक्टली, तो आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो लीनियर रिकरेंस है या डिवाइड एंड कॉन्कर रिकरेंस है। फिर अगर वो लीनियर है तो होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है, उसके हिसाब से गेस एंड वेरीफाई यूज करके या प्लग एंड चेक यूज करके या फिर कुकबुक मेथड यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। अगर ये डिवाइड एंड कॉन्कर है तो आप अकराबाजी यूज करके या मास्टर थ्योरम यूज करके भी उसे सॉल्व कर सकते हो। आगे के टॉपिक्स में आता है जनरेटिंग फंक्शंस, वो भी यूज किया जाता है रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करने के लिए। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर रिकरेंस दे दिया तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर प्रॉब्लम दिया तो रिकरेंस फाइंड आउट करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। Am I right? जैसे बाइनरी सर्च का रिकरेंस ढूंढने के लिए मैंने आपको बोला था, वैसे ही मैक्सिमम मिनिमम का रिकरेंस ढूंढने के लिए बोला था। पीछे हमने एग्जांपल्स लिए थे जो सिंपल मॉड्यूलो 3 वाला था, कुछ नॉर्मल सीक्वेंसेस के रिकरेंस रिलेशंस हमने फाइंड आउट किए थे। फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि रिकरेंस फाइंड आउट करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। एम आई राइट? या आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम दिया तो आपको रिकरेंस फाइंड आउट करना आ जाएगा? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आगे का टॉपिक में जनरेटिंग फंक्शंस लूं या फिर रिकरेंस रिलेशंस फाइंड आउट करने के एक दो एग्जांपल्स एक्स्ट्रा लूं। बोलो आप, आर यू देयर और नॉट? नेक्स्ट टॉपिक के लिए जाना है या रुक जाना है या रिकरेंस रिलेशंस और देखने हैं? क्लास ज्वाइन करके भाग गए क्या आप लोग? नो मैम। मग काय करायचं? पुढचं टॉपिक घ्यायचा की रिकरन्स रिलेशनचे 2-3 एक्झाम्पल्स अजून सॉल्व करायचे। रिकरन्स रिलेशन सॉल्व नाही करणार, फक्त रिकरन्स फाइंड आउट करणार। एक एक्झाम्पल घ्या मॅम. बरं ठीक आहे, आपल्याकडे आता 10 मिनिटं आहेत, आपण एक एक्झाम्पल घेऊ शकतो। Is this visible? Blank presentation visible to you? नो मॅम. No, I think. Okay. Now here I'm writing one example. Determine, ये डिटरमाइन का बाद में लेंगे, पहले दूसरा एग्जांपल ले लेंगे। Suppose that you also write down this example in your notebook. Suppose that a person deposits $10,000 in a savings account after an year savings account at a bank yielding 11% per year with interest
compounded annually how much will be in the account after 30 years. Suppose that a person deposits $10,000 in savings account at a bank yielding 11%. आज एक पर्सन ने बैंक में $10,000 डिपॉजिट किए, इंटरेस्ट रेट है 11%, और जो इंटरेस्ट रेट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है. आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट आता है हर साल उसे ऐड नहीं किया जाता है, जो एक्चुअल अमाउंट है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड नहीं किया जाता है. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि $10,000 पर 11% रेट से जितना भी इंटरेस्ट आया ये इसमें ऐड हो जाएगा. तो नेक्स्ट ईयर वो जो एडेड अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. अगले इसमें जो एडेड अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. तो हमें बताना है कि 30 साल के बाद इस पर्सन के अकाउंट में कितने पैसे होंगे. तो ये जो है हमें रिकरेंस रिलेशन फाइंड आउट करना है. इससे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं. तो अगर हमारे पास P0 है तो P1 क्या आएगा, मतलब एक साल के बाद प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा. तो हमें फाइंड आउट करना है P30 क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर 30 years. कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको. पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो P1 है, P1 का फॉर्मूला, फिर P2 का फॉर्मूला, फिर P3 का फॉर्मूला, अगर कोई पैटर्न आएगा तो फिर Pn का फॉर्मूला बोलेंगे और उसमें n की जगह पर 30 डालेंगे और वैल्यू निकालेंगे. ये जो रिकरेंस रिलेशन है ये हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फर्स्ट वी हैव टू assume P of n. So let Pn is, it denote the amount in the account after n years. Because the amount in the account after n years equals to the amount in the account after n minus 1 years plus interest for nth year. तो रिकरेंस रिलेशन कैसे बना सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे Pn लिखना है तो Pn क्या, प्रिंसिपल अमाउंट अप टू Pn माइनस 1 ईयर्स. मतलब अगर P30 निकालना है तो प्रिंसिपल अमाउंट P29 ईयर्स के बाद कितना था वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट था. तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ये है आपके 11%, मतलब 0.11 into Pn minus 1. Am I right? आपके पास P0 है जो है $10,000 मीन सपोज 10,000 है. तो P1 कैसे निकालेंगे आप, P1 निकालेंगे आप ये 10,000
प्लस जो इंटरेस्ट रेट है ये है 0.11, 11% मतलब 0.11। ये किस पे कैलकुलेट किया है? 10,000 पे। तो P1 कैसे कैलकुलेट होगा? P0 प्लस 0.11 इंटू P0। P2 कैसे कैलकुलेट होगा? P2 होगा P1 प्लस 0.11 on P1। Am I right? ऐसे ही होगा ना? तो इसीलिए यहाँ पर ऐसे लिखा है Pn इक्वल्स टू Pn-1 प्लस 0.11 इंटू Pn-1। ये होगा हमारा रिकरेंस रिलेशन। एंड द इनिशियल कंडीशन क्या होगी? इनिशियल कंडीशन इज P0 इक्वल्स टू 10,000। ये है इनिशियल कंडीशन। तो फिर इनिशियल कंडीशन दी है, रिकरेंस रिलेशन दिया है, तो फिर हम इसका पहले पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि P30 निकालने के लिए P1 फिर P2 फिर P3 फिर P4 अप टू P29 निकालेंगे तब P30 निकलेगा। तो इसलिए हम एक्चुअली इसे सॉल्व करके उसका फॉर्मूला निकालते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला इटरेटिव मेथड से भी कैसे निकाल सकते हैं? जैसे अगर P1 निकालना है तो वो हो जाएगा आपका, यहाँ पर दिया है P0 प्लस 0.11 P0। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? P0 कॉमन है। तो क्या मैं इसको 1.11 P0 लिख सकती हूँ? इसे P0 में 0.11 P0 ऐड किया है, तो इसका कोएफिशिएंट है 1 और इसका है 0.11। तो ये हो गया आपका 1.11 P0। अगर मुझे P2 निकालना है तो वो हो जाएगा आपका 1.11 P1। तो ये सेम आ जाता है 1.11 इंटू 1.11 P0। ये जो P1 है इसे हमने ऐसे रिप्लेस किया और इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा 1.11 रेज़ टू 2 P0। मतलब P2 मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ P0 यूज करके। P0 है हमारी इनिशियल कंडीशन जो दी है। अगर मुझे P3 निकालना है तो वो हो जाएगा आपका 1.11 P2। P2 will be 1.11 into 1.11 रेज़ टू 2 P0। तो वो हो जाएगा आपका 1.11 रेज़ टू 3 इंटू P0। तो P3 भी मैं P0 यूज करके कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो मैं Pn कैसे कैलकुलेट करूंगी? ये फॉर्मूला यूज करके ये होगा आपका 1.11 रेज़ टू, कितना लिखूं यार रेज़ टू? n n n 0। तो n ये हो गया minus आपका 1 सोल्यूशन। हाउ n-1? 3 है तो यहाँ 3 आ रहा है, 2 है तो यहाँ 2 आ रहा है, 1 है तो यहाँ 1 आ रहा है। फिर n के लिए n-1 क्यों आएगा? गेटिंग? तो अब आप P30 निकालो। P30 कैसे आएगा फिर? 1 इंटू 1.11 रेज़ टू 30 इंटू 10,000। क्या आएगी अमाउंट? कैलकुलेटर है क्या आपके पास? ये आता है $228,922.97।
तो इतनी अमाउंट बैंक में होगी आफ्टर 30 years. दिस इज द वे वी फाइंड आउट रिकरेंस रिलेशन. ये भी एक है मेथड you can use to find out recurrence relations. So we will stop now. Tomorrow we will see 2 more examples of finding recurrence relations, and then we will go for next topic. Okay, you might have next lecture now.